ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੰਡਿਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਬੜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੰਮਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਦਮ ਕਿਉ ਹੋਤੀ ਸਾਟ, ਰਾਵਣ ਹੋਤੇ ਸੋ ਰੰਕ ਨੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟ। ਚੌਬੋਲੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੂਰਛਤ ਹੋ ਕੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੀ, ਉਂਝ ਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹੀ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਵਣ ਹੋਤੇ ਸੋ ਰੰਕ ਨੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟ। ਇਹ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੱਬੀ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੰਮਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਦਮ ਕਿਉ ਹੋਤੀ ਸਾਠ, ਰਾਵਣ ਹੋਤੇ ਸੋ ਰੰਕ ਨੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟ। ਉਹਨੇ ਸੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਜੋੜਿਆ। ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਇਹ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੀਸ ਰਾਵਣ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਤਿਆਗੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਸੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਬੈਠੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਰਚਾ ਬੜੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾਏ। ਕਰੀਬਨ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰਦੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤੇ ਪਰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਲਵੇ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਲਵੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਕਿੱਥੇ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ 5 ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ, 5 ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਮੰਗੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਵਣ ਹੋਤੇ ਸੋ ਰੰਕ ਨੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟ। ਅੱਜ ਹਾਰ ਗਿਆ ਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਤੀਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਨੇ 'ਚ, ਗਿਰ ਗਿਆ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ 'ਚ, ਆਖਰੀ ਦਮਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ। ਇਹ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਉਸ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਲੈ, ਬੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦਾ, ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਰਾਮਾਇਣ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਲਕਸ਼ਮਣ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਐ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੇ। ਰਾਵਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੇਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਉਹ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਮਾਂ ਦੇ। ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਦਮ ਹੈ ਉਸ ਤੇ, ਅਜੇ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਮੰਗਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਾ ਉਸਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ 'ਚ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਸਫ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਅਦਕੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਗਏ ਨੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਅੱਖ ਖੋਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਲਕਸ਼ਮਣ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋ ਅੱਜ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਵਣ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬੋਲ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਔਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ? ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ? ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੱਲ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲ, ਉਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ। ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ। ਤੋ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਤੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਲ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਛਕਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣ, ਜੋ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਐ ਮਰਦਾਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ 100 ਕਦਮ ਮੈਂ ਚਲਾਂ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਮੈਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ। ਸਾਹਿਬ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਇਹਨੂੰ 100 ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ? ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਟਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੈਨੂੰ 100 ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਬਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਮ ਆਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਆਦਮੀਆਂ ਇੱਕਦਮੇ ਮੌਲਤ ਮੌਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਣਾ ਹੈ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਦਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਮ ਆਦਮੀਆਂ ਇੱਕ ਦਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕਦਮ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾ। ਉਸ ਇੱਕ ਦਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਇੱਕ ਦਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਦਿਸੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਚੇਤੇ ਏਕ ਤਹੀਂ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜੋ ਇੱਕ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।
एक फकीर गरीब भी इसे चिंता च जींदा है, एक धनाड़ अमीर भी इसे चिंता जींदा है। अज लखां दा लाभ होया, पता नहीं कल होना है कि नहीं, चिंता। और छोटा वड्डा की हर मनुख इस चिंता दे जी रहा, और चिंता भविष्य दी, आने वाले कल दी। तुलसी अपने वक्त का एक बहुत उग्गा शायर होया है हिंदी का, जिसने रामायण लिखी। बचपन में यतीम हो गया सी, मां बाप मर गए, किसी आश्रम विच पलिया सी। आश्रम का जिहड़ा मुखी सी वो पढ़ांदा रहा, ते तुलसी के जिहड़े बूटे सन, उस आश्रम विच एक बूटी आउंदी जिहनूं तुलसी कहंदे ने। मलेरिया बुखार विच काम आउंदी है, ठंड लग जाए, जुकाम लग जाए, हिंदुस्तान विच पुराना इलाज तुलसी के पत्तियां तो करते सन। और तुलसी के पत्ते हर पिंड विच लभ सकन, ऋषि मुनिया ने एक विधान बना दिता सी भी हर घर दे होने चाहिए ने, पवित्र गल है। तो जे हर घर दे नहीं तो कम से कम मंदिर की जरूर है, ताकि लोग उत्थों तोड़ के ले आन। बेशुमार बीमारियां दे वो कम आउंदे ने पत्ते। तो तुलसी के बूटे ला रखे सन आश्रम के मुखी ने। इसका नाम, इस बालक यतीम का नाम तुलसीदास रख छड़े भी तू तुलसी के बूटियां की बहुत सेवा करदा है, ते करे आई कर। एक दिन आश्रम का महंत किधरे बाहर जान लगा, दूर दराज जान लगा, ते 2-3 महीनों तो बाद इसने वापस आना सी। वो तुलसी नूं कहन लगा, देखी कोई बूटा कुमलाए ना, मुरझाए ना, ख्याल रखी, पानी देंदा रही, गोडी करदा रही, एक बूटा भी कुमलाना नहीं चाहिए। संक्षेप विच मैं अर्ज करा मुख्तसर, जद 2.5-3 महीनों तो बाद ये आश्रम का मुखी वापस आया, अद्धा बगीचा कुमलाया होया, सुक गया, पत्ते झड़ गए। कहने बहुत गुस्सा चढ़िया आश्रम के मुखी नूं, स्वामी नूं। उन्हें तुलसीदास नूं बुला के कहा, झाड़ पाते एक ही कर छड़िया, तू तो सारा बगीचा ही मेरा उजाड़ के रख दिता, तू पानी नहीं देंदा होवेगा। कहंदा नहीं, मैं पानी देंदा रहा, गोडी भी करदा रहा, देख रेख भी करदा रहा, फिर भी मुरझा गए। ये हो ही नहीं सकता कि तू पानी देंदा रहे ते फिर मुरझा जान। कहंदे ने इन्हां बचना ने, सख्त बचना ने हिरदे नूं हिलाया, दुखद कीता, और उस चोट नाल ये तुलसीदास कवि बन गया। अंदरों एक कविता फुट पई, तुलसी बिरवा बाग के सींचत हूं कुमलाए, राम भरोसे जो रहे तो पर्वत पर हरे आए। अपने विद्या गुरु नूं कहण लगा भी गल सुनो, मैं सिंचदा रहा सवेरे ते शाम, कुमला गए ने पहाड़ां ते दरख्त खड़े ने, ना मैं सिंचदा ना कोई होर सिंचदा, हरे भरे खड़े ने। और मेरी जिम्मेवारी नहीं, उत्थे किसी मनुख की जिम्मेवारी नहीं, हरे भरे खड़े ने, बड़ी बनस्पति हरी भड़ी खरी है। तुलसी कहने जिहड़ा रब्बों ही कुमलाया उन्होंने मैं कित्थों हरा भरा करा। और जिहड़ा इस तरीके नाल राम के भरोसे ते जीण दे निश्चिंत ने, कुमलाना है ही नहीं। कहने विद्या गुरु ने तुलसी नूं गलवखड़ी च लिया, कहने लगे तू वर्तमान दे जीण वाला मनुख है, तू अज दे जीण वाला मनुख है, तू ते कोई महानता अपने विच छुपाई बैठा सी, अज प्रगट होई है तेरे च। तू बहुत वड्डी गल अपने विच छुपाई बैठा सी, और मैं देखांगा तेरियां इन्हां खुशियां नूं तू जीवन भर कदी चिंतातुर नहीं होवेगा, क्योंकि तू अज दे जीण वाला है, अज नूं सफल करदा, अज दी गल करदा। भाई साहब भाई गुरदास जी कहने जिहड़ा गुरु का सिख है वह वर्तमान विच वरतदा, अज दे च वरतदा, अज नूं लेखे लांदा, अज नूं सफल करदा। ऐसा नहीं कि बीत गई दी याद पई हड्डां नूं खावे, आउण वाले दा सहम पिया मन नूं तड़पावे। तो चिंता बहुती हुंदी है रिज़क दी, ते रिज़क दा संबंध है शरीर नाल, अन्नमई कोश नाल, ते अन्नमई कोश दी चिंता करी जानी कहंदे ने। और इसे चिंता दी जिंदगी बतीत करनी कि पशुआं तो भी थल्ले, पंछियां तो भी थल्ले। गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, परिंद है ना गिरहे जर, दरख्त आब आस कर,
देहंद सोही एक तू ही एक तू ही। तिलंग मल्ला पहला साहब कहते मैं हैरान हाँ कि ये जिहड़े पंछी ने अज दाना दुणका चुग के आए ने अपने घोंसले च, कल की कोई चिंता ही नहीं, पता नहीं कल लभना है कि नहीं। परिंद है ना गिरे जर दरख्त आप आस कर देहंद सोही एक तू ही एक तू ही। हां बलहारे किना पंखियां जंगल जिन्ना वास, कक्कर चुगन थल वसन रब ना छोड़न पास। बाबा फरीद वर्तमान विच जींदियां ने, पंछी अज विच जींदे ने। पंछियां कोल चहचहाना है, मुस्कुराना है। जिहड़े गीत पंछियां कोल ने, बंदे कोल ते सिवाय रोणियां ते होर है ही कुछ नहीं। किसी कोल बैठ के वेख लेना, सिवाय रोणियां तो होर नहीं। गीत कित्थे ने बंदे कोल? चहचहाना कित्थे है? कुछ भी नहीं है, रोने ही रोने हैं। किसी कोलों भी उहदी गठड़ी खोल के वेख लेना, फिर पता चलेगा। सुभाविक एक बंदा पुछ लैंदा भी तेरा की हाल चाल है, अगला कह दिंदा बड़े आनंद च हां, भावें घरों रोंदा पिटदा आया होवे, एवें ही कह दिंदा, सुभाविक ही कह दिंदा। आनंद प्रसन्न कित्थे भी तेरा की हाल चाल है? ते जे अगला हाल चाल सुनाण लग पवे, तेरे कोल वक्त है? तुम ही सरसरी पुछ लिया ओहदे कोल तेरा की हाल चाल है। अगला हाल चाल सुनाण लगे, मनुख कोल वक्त ही नहीं। ते अगला हाल चाल सुनाएगा तो सिवाय रोणियां दे होर कुछ नहीं। चहचहाना नहीं होवेगा, मुस्कुराना नहीं होवेगा, खेड़े नहीं होणगे। ये खेड़े पंछियां कोल है, मनुखां दे कोल कोई नहीं। तो अन्नमयी कोश की सिर्फ फिक्र करी जानी और इसे ही तल ते जीवना। कहन ये पशु समान है। अन्नमयी कोश अन्न पानी के आसरे ते जो चलता है। साडे त्रैमण देहुरी चले पानी अन्न। इस शरीर दे थल्ले एक होर शरीर है जिसनों कहते ने प्राणमयी कोश। वो जीवदा है चंगी साफ सुथरी ताजी हवा के आसरे ते। प्राचीन ऋषि मुनि अपने आश्रम दे इस गल ते बड़ा जोर देंदे सन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बहुत जोर देंदे सन अपने सिखां नूं, आओ बई चलीए खेडीए। होले मल्ले दीयां खेडां इत्थों जारी होईयां। कोई बाहर की फिजा विचों ताजी हवा लो, अपना प्राणमयी कोश साफ ते सुथरा करो। जे गंदा भोजन नहीं चाहिए, गंदा पानी नहीं चाहिए, तो गंदी हवा भी नहीं चाहिए। अन्नमयी कोश वास्ते तेनों साफ सुथरी गिजा चाहिए, प्राणमयी कोश वास्ते तेनों साफ सुथरी हवा चाहिए। हर वक्त अठे पैर मनुख तंग ते सुखड़ी हवा विच रहण वाला मनुख, ओदा प्राणमयी कोश रोगी हो जाएगा। ओदे तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाणगियां धर्म ग्रंथां के कथन अनुसार। और इतनी मैं अर्ज करदे हां कि दोहां की खोज अपने अपने ढंग की है। साइंस की खोज अपनी है, धर्म की खोज अपनी है। प्राणमयी कोश में अगर ताजी हवा ना मिले, मनुख के अंदर बहुत कुछ सफुर्ती दे ताजगी दे जड़े आजाद ने वो मध्यम पै जाएंगे, खत्म पै जाएंगे। ताजी हवा चाहिए। और प्राणमयी कोश इस साफ सुथरी हवा के आसरे ते जींदा है। गंदा भोजन खा के भी पेट भरिया जा सकता है, भुख मिटाई जा सकती है। गंदी हवा ते बंद हवा विच जी के भी प्राणमयी कोश को जिंदा रखा जा सकता है, पर रोगी होगा, तरह तरह के रोग पैदा हो जाए। प्राणमयी कोश तो बाद तीसरा कोश मने है मनमयी कोश। ये किस तरह जिंदा है? विचारां दे आसरे ते। इनू विचार चाहिए। मन जिंदा विचारां दे आसरे ते, पुरनियां दे आसरे ते। तो जिथे अन्न पानी चंगा चाहिए अन्नमयी कोश नूं, हवा साफ सुथरी चाहिए प्राणमयी कोश नूं, मनमयी कोश नूं चंगे विचार चाहिए। तुर्क तरीकत जानिए हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारणे कछुक पड़िए गया। तुसी कथा सुन रहे हो कि अन्नमयी कोश की जरूरत नहीं, इहदे नाल पेट नहीं भरना। ये प्राणमयी कोश की भी लोड़ नहीं, ये मनमयी कोश की लोड़ है। ये तीसरे शरीर की गिजा है, ये पहले ते दूजे शरीर की गिजा नहीं। पर जिस तरह गंदा भोजन खा के, जहरीला भोजन खा के भी भुख मिटाई जा सकती है, तिवें मनमयी कोश नूं गंदे विचार दे के भी रजाया जा सकता है। जिवें एक नॉवल पढ़ रहे हैं, गंदा जासूसी और जिनसियात दे नाल भरिया, तो विचार ने उहदे विच भी पढ़ रहे हैं। हुण मनमयी कोश नूं ये विचारां मिल रही हैं, मनमयी कोश तृप्त हो रहा है, मनोरंजन हो रहा है।
एक पढ़ रहा है धर्म ग्रंथ की कोई व्याख्या, एक पढ़ रहा है गुरु दियां साखियां, एक पढ़ रहा है जन्म साखी, 10 गुरुआं का इतिहास, सूरमियां दियां कथावां एक पढ़ रहा है, एक पढ़ रहा है जिनसियात दे नाल भरिया होया गंदा ਸਾਹਿਤ। कहते ने पिछले 3000 साल दे इतना गंदा ਸਾਹਿਤ कतई नहीं छपिया सी जिहड़ा इन्हां 50 सालां दे छपिया। कहते ने मनुख कितना गंदा हो गया है, मनुख दा मन किस तरह पता चलेगा? वेख लेना मनुख दा मन कितनी गंदी गिजा खा रहा है, कितना गंदा ਸਾਹਿਤ छप गया है, कितने नावल, कितने जिनसियात दे नाल भरे हुए मैगजीन, और मनुख यही खिला रहा है अपने मन। बड़े बड़े गुरमुख भी मैं अपने देश विच देखिया फालतू समझ फिल्मी मैगजीन पढ़ते हैं और कुछ नहीं, गंदियां किताबां। आए फिल्म एक्टर कदों जमी, किवें जी रही है, कदों मरेगी, निकम्मे वक्त अपना जाया कर रहे, समा में जाया कर। वो जासूसी कहानियां नावल दे जिन्हां दा जिंदगी की हकीकत नाल कोई तल्लुक नहीं, सिर्फ मन नूं ग़िज़ा दित्ती जा रही है। तो गंदा पानी पी के भी प्यास बुझाई जा सकती है, गंदी ग़िज़ा खा के भी भुख मिटाई जा सकती है, गंदे विचारां नाल भी वक्ती तौर पर मन नूं शांत किया जा सकता है। मन विचार मंगदा है, मनमई कोश नूं विचार चाहिए ने, जैसे प्राणमई कोश नूं हवा चाहिए है, अनमई कोश नूं अन्न पानी चाहिए, उस तरीके नाल मनमई कोश नूं विचारां चाहिए। विचारां तो बिना नहीं जी सकता। और इत्थे कोई भी विचार ना गुरुद्वारे चले बंदा नहीं बैठ सकेगा, मन नूं कुछ विचार चाहिए। तुर्क तरीकक जानी है, हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारने कछु पढ़िए ज्ञान। कबीर कहते मन नूं समझाण वास्ते कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। तो मुसलमान है कुरान पढ़, तू हिंदू है पुराण पढ़, धर्म ग्रंथां का पाठ पठन कर। गुरु अर्जन देव जी महाराज का फरमान, पोथी पुराण कमाईए, भव वट्टी इत तन लाइए, सच बूझण आण जलाइए, ए तेल दीवा इउं जले कर चानण साहिब तो मिले। पोथी पुराण कमाईए, पढ़ तू पोथियां, पढ़ तू धर्म ग्रंथां, बाबाणियां कहानियां पुत सुपुत करें, पढ़ तू इन्हां कहानियां, बाबे दियां कहानियां, बुजुर्गां दियां कहानियां, भगतां दियां कहानियां पढ़। कहते ने गंदा भोजन खाण की आदत पै जाए फिर साफ सुथरे भोजन के रस नहीं मिलता, आदत आती है। तुसी आखोगे ऐसा भी है, ऐसा भी है। कौवे नूं गंदगी खाण की आदत है, वो साफ सुथरी चीज नहीं खा सकता। कौवा कहां कपूर चराए, कह बिसियर को दूध पिया। कौवे दे मूंह दे कोई चंगी चीज नहीं होगी, सुगंधित चीज नहीं होगी, गंदियां चीजां होंगी। आदत बन गई, ਉਹਦੇ जीवन का सुभाव बन गया। कई मनुखों के मन का सुभाव बन जाता है, नावल तो पढ़ सकते हैं, 8-8 घंटे पढ़ सकते हैं, 10 मिनट वो जपजी साहब का पाठ नहीं कर सकते। मैनू कई बंदे ऐसे मिलन, मैं देखना पोतरे नाल गल्लां करी जांदे ने 6-6 घंटे, तो कह दो बई 10 मिनट वास्ते जपजी साहब का पाठ कर लो, कहते ज्ञानी जी दिमाग कमजोर है, मत्था दुखण लग पैंदा, नजरां कमजोर है। 6-6 घंटे खपदे मत्था नहीं दुखता, खपी जांदे ने पोतरे नाल, बोली जांदे ने। पोतरे नाल 6 घंटे बोल सकता है, 10 मिनट गुरु नाल नहीं बोल सकता। 8-8 घंटे यारां दोस्तां नाल बोल सकता है, 15 मिनट गुरु नाल नहीं बोल सकता। गुरबाणी पढ़नी, गुरु नाल बोलना, इतनी मैं अर्ज कर दें। सतगुरु दे बचन पढ़ने, ये गुरु नाल बोलना, ये गुरु नाल वार्तालाप है, ये गुरु दे नाल चर्चा है। इस वास्ते मैं अक्सर अर्ज करना होना कि बाणी का पाठ भी जाप है, बाणी पढ़नी नहीं जपनी है। ये पढ़ना भी जपना है, पढ़ी जाओ, नहीं अर्थबोध की समझ कोई जरूरत नहीं, इनू पढ़ी जाओ। ये पढ़ना भी जपना है। गुरमुख बाणी नाम है, नाम हृदय वसाई, ये नाम है, ये जपना है। अर्थबोध की कितनी तय विच तू जाएगा, कित्थे तक चला जाएगा। कहते ने भाई साहब, भाई मनी सिंह ने जब 22वीं वार का तर्जमा करके, टीका करके गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को पेश किया, महाराज मैं बाणी के अर्थ कीते ने, सतगुरु बहुत खुश होए,
कहने लगे तू साडा ज्ञानी सिंह है। उत्थों ये ज्ञानियां की प्रथा चली, इस तो पहले नहीं सी शब्द। वध तो वध गुरु घर दे भाई साहब की डिग्री सी। भाई साहब कोई बड़ा भजनीक होवे, पूजनीक होवे, संजम नाल रहिंदा होवे, कहंदे सन भाई साहब। ज्ञानी सिंह की प्रथा चली भाई मनी सिंह तो, और ये गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की देन। साहब बड़े प्रसन्न होए। संत शब्द वरतिया जाता सी गुरुआं वास्ते, इतनी मैरज करके। प्राचीन समय महान हस्तियां नूं भी संत नहीं आख्या गया। भाई मरदाना, भाई बाला, कोई संत मरदाना नहीं। जिहड़ा गुरु नानक नूं कीर्तन सुणांदा है वह भी संत मरदाना नहीं, भाई मरदाना। भाई गुरदास इन्ना गहरा फलसफा सिक्खी दा देण वाला भाई। भाई मंज, भाई बन्नो, पंज प्यारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ भी भाई शब्द। भाई दया सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई हिम्मत सिंह। संत नहीं, भाई मनी सिंह ये शब्द है। भाई तारू सिंह है। कुछ पूजनीक हस्तियां दे नाल बाबा शब्द जुड़िया, जैसे बाबा बुढ़ा, शहीद बाबा दीप सिंह। संत शब्द गुरुआं वास्ते सी। इहदा सबूत मैं दियां कि संत शब्द सिर्फ गुरुआं वास्ते सी। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बोल, मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई, बिलक करे चात्रिक के न्याय, त्रिखा ना उतरे शांत ना आवे बिन दर्शन, संत प्यारे जी। संत को गुरु रामदास जी नूं कह रहे हैं। जब दर्शन हो गए तो भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया। ये संत शब्द गुरु रामदास जी महाराज वास्ते वरत रहे हैं। भगत कबीर नूं कहा गया तुहाडा संत कौन है? क्योंकि मैं घूम फिर के देखा विदेशों च लोगों के संत ने गुरु नाल कोई कोई जुड़े। साडे फलाने बाबे, साडे फलाने बाबे, साडे फलाने बाबे। गुरु नानक कुछ भी नहीं, गुरु गोबिंद सिंह कुछ नहीं, यदि गल मूहों निकलती नहीं। कोई किसी का सिख, कोई किसी का सिख, गुरु नानक का सिख ते कोई कोई, गुरु ग्रंथ साहब का सिख ते कोई कोई। नहीं तो चर्चा कुछ होर दी होड़ चली है। शब्द नाल सतगुरां ने जोड़िया सी, मनुख व्यक्ति तो उच्चा नहीं उठ सके। अजे भी उस तरीके नाल ये प्रथा चली हुई। कबीर नूं कहने लगे तेरा कोई संत है? कबीर कहते ना, हमरो भरता बड़ो विवेकी, आपे संत कहावे, वो हमारे माथे कायम और हमरे निकट ना आवे। और संत मेरे नेड़े ना आवे। वो जिहड़ा मेरा अकाल पुरख है, परिपूर्ण परमात्मा वो संत है, मैं उसके नाल संबंध जोड़ लिया। सारियां दी मैं सेवा करनी है, सत्कार करना है। संत ते मेरा अकाल पुरख है। हमरो भरता बड़ो विवेकी, आपे संत कहावे। जैसे जैसे सिमरन करदियां, भजन करदियां प्रकाश होंदा है, मनुख व्यक्ति तो टुट के शक्ति दे नाल जुड़दा है। जैसे जैसे बंदा अंधेरे च भटकदा है तो बंदियां नाल जुड़दा है, मनुखां नाल जुड़दा है। और ये हकीकत है बिल्कुल। ऐसा ना समझना कि गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरियाई गद्दी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने दिती। नहीं, गुरु ग्रंथ साहब पहले दे गुरु ने। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तो पहले दे बचन मौजूद ने। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। ये शब्द गुरु गोबिंद सिंह तो पहले दे मौजूद ने। शब्द गुरु सुरत धुन चेला के पहले पातशाह दे वाक ने। शब्द गुरु पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्दे जग दौड़ाना, ये शब्द पहले दे मौजूद है। और कहो कबीर मैं सो गुरु पाया, जां का नाम विवेको। जिहदा ना है ज्ञान, जिन्हों कहते हैं ज्ञान, उस गुरु की मैनू प्राप्ति हुई, उस विवेक की मैनू प्राप्ति हुई। और वास्तविक जिंदगी बदलती है ज्ञान नाल, जीवन बदलता है ज्ञान नाल। जीवन विच क्रांति आउंदी है ज्ञान दे नाल। तो मैं अर्ज कर रहा सी, गुरु घर दे विच ये सब तो वड्डियां डिग्रियां सन। भाई साहब, ज्ञानी जी, बाबा जी। संत शब्द गुरुआं वास्ते सी या भगत अकाल पुरख वास्ते वरतते सन। बाद विच पंथ ने फैसला कर लिया सी, ये लकब जोड़िया सी बाबे अतर सिंह नाल, सिर्फ इस वास्ते निर्मले उदासी साथों टुट गए सन। संत संप्रदा साथों टुट गई सी कुछ।
ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। तो बाबा अतर सिंह मस्तुआणे वाले नाल पंथ ने फैसला करके संत शब्द जोड़िया सी, संत बाबा अतर सिंह मस्तुआणे वाले। लेकिन वो रो पै सन जद लकब उन्हां नाल जोड़े, ज़ारो ज़ार कहने लगे नहीं अनर्थ कर रहे, पर पंथ दा फैसला। और दिलों उन्होंने कभी नहीं चाहया सी मैनू कोई संत आवे, वो भाई करके बाबा करके राजी सन। ते खिमा करने अज जिन्हां कोल भाई साहब वाली भी कोई गल नहीं, ते जिन्हां नूं भाई साहब कहना भी भाई साहब की तौहीन करनी है, उन्हां नूं लोकी संत ते गुरु जान के पूजी जाते। बड़ा अनर्थ है, बहुत अनर्थ है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहने लगे पुरखा तू ते साडा ज्ञानी सिंह है, बड़े सोहने अर्थ कीते तो। मनी सिंह नूं गल पुर पई, कहने लगा महाराज तुसी आप अर्थ कर जाओ, जे मैं इतने कीते ते आप ते बड़े डूंगे अर्थ करोगे, ते जिथे तुसी बीड़ लिखवा दी है दूसरी उत्थे अर्थ भी कर जाओ, ताकि अर्थां संबंधी झगड़ा अगे ना हो, तुसी करो। सहज कहने लगे मनी सिंह ये नहीं, ये ते आप अपनी बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तोय ते थी, खसम दे बोल ने खसम दी बाणी है, अकाल पुरख दे बचन ने, जिहड़ा जितना डूंगा चला जाएगा उन्होंने उतने कीमती रतन लभ पैणगे, थै कोई नहीं इसकी। मैं अर्थ करा तो उही अर्थां ते मनुख रुक जाएगा, एक बाणी की थै बना देंगे असी, तय तय नहीं है इसकी। एक जितना गहरा कोई चला जाएगा उतनी गल होगी। और आप सुन के हैरान होवोगे, पहले निर्मलिया ने टीका किया सी कुछ बाणियां दा, सिख जगत विच बड़ियां धुम्मां पै गई, बई कमाल हो गई। पंडित तारा सिंह नरोत्तम ने जपजी साहब का टीका किया, बड़ी गल। पंडित गंगेश्वरानंद ने, स्वामी गणेशा सिंह ने, पंडित गुलाब सिंह जी ने, ये निर्मले महात्मा सन, इन्हों ने अर्थ किए, बड़ी धुम्मां पै गई। फिर फरीदकोटियां दे टीके सामने आए, महाराजा फरीदकोट ने गुरु ग्रंथ साहब का टीका कराया, सिख जगत के महापुरुष इकट्ठे करके, विद्वान इकट्ठे करके, और फरीदकोटियां दे टीके की बड़ी धुम पै गई। हुण पंजाब गौरमेंट ने दोबारा छापिया 4 जल्दां विच, बड़ी चर्चा हो गई बई ये तो महान गल है, उहदे च भी एक एक शब्द के 8-8 अर्थ सन। फिर भाई साहब भाई वीर सिंह जी दीयां कुछ पोथियां टीके के रूप में सामने आई, लोकी फरीदकोटियां नूं भुल गए बई नहीं कौन 8-8 अर्थ पढ़े, ये ठीक ने, भाई साहब ठीक ने। फिर प्रिंसिपल साहिब सिंह का टीका आ गया,